my dear students, good morning. Jai Shri Krishna. Myself, Raju sir, and I heartily welcomes to you in my today's educational YouTube lecture. So my dear students, currently we are discussing about the chapter biomolecule. It means chapter number 14. And in our last lecture, we discussed about the nomenclature of different types of carbohydrates and also the preparation of glucose. But today we are going to discuss about the proof of acyclic structure of glucose. It means how can we prove the structure of glucose? हमें कैसे पता चलेगा कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की एक चेन है, उसमें एक CHO अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, उसमें डिफरेंट 5 OH फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें से 4 सेकेंडरी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, एक प्राइमरी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है. भाई कैसे पता चलेगा? आज हमें डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बेस पे ये ग्लूकोज का एसाइक्लिक स्ट्रक्चर प्रूव करना है. रेडी? मगर ये सभी के सभी जो रिएक्शंस देखने वाले हैं वो सभी हमने एक बार देख लिए हैं चैप्टर नंबर 12 कार्बोनिल कंपाउंड्स में, जो हमने ऑलमोस्ट रिएक्शन देखी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. रेडी? एल्डिहाइड एंड कीटोन कंपाउंड्स में. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक हाउ टू प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. So you can see here, prove the acyclic structure of glucose. Glucose is one type of aldohexose. हम उसे aldohexose बोलते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में नोमेनक्लेचर में देखा था. Aldo word coming from aldehyde functional group and hexose, ose is suffix and hexo word for 6 carbon chain is present. So it means in glucose the chain of carbon having 6 carbon. One aldehyde functional group is present, so we have to prove the 6 carbons are present in glucose in straight chain. One aldehyde functional group is present. So in aldohexose, it means in glucose, first of all we have to prove the 6 carbon chain. But before this, you can see here the molecular formula of carbon is C6H12O6. मतलब हमें ये प्रूव करना होगा कि कार्बन में 6 ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, और वो भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बेस पे. तो वो 1 by 1 प्रूव करना है. ठीक है? तो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन इज C6H12O6, मोलिकुलर वेट इज 180 एंड इंपिरिकल फॉर्मूला इज CH. एंड ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज. मेडिकल फील्ड में जितने भी डॉक्टर्स या नर्सिस है वो सब ग्लूकोज के बदले डेक्सट्रोज बोलते हैं. अगर ग्लूकोज की बोतल कोई पेशेंट को लगाते हैं तो उसे वो बोलते हैं कि डेक्सट्रोज लगाया. ठीक है? ओके, सो you can see here this is the structure of glucose: CHO, CHOH, 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 CHOH 4 times and CH2OH. In this 6 carbon chain, first carbon is present in form of aldehyde functional group. This intermediate 4 carbons are present in form of secondary alcohol and last carbon has primary alcohol functional group. So सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे? ये स्ट्रक्चर प्रूव करने के लिए इसका बेस तो बनाना होगा, बेस ही निकालना होगा. फाउंडेशन के लिए हमें सबसे पहले ये प्रूव करना होगा कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है. ठीक है? सो अभी हम जंप लगाते हैं चैप्टर नंबर 12 में, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. Reduction of carbonyl compound, and we can use the so many reducing agents like lithium aluminum hydride, sodium borohydride. But when we reduce the carbonyl compounds by using lithium aluminum hydride or sodium borohydride, we will obtain the primary alcohol or secondary alcohol. But if we want to produce hydrocarbon by the reduction of carbonyl, then we have to use hydrogen iodide in presence of red phosphorus, right? So let's use that type of specific reducing agent to prove the structure of glucose. So first reaction is, मैंने यहाँ पे 1 by 1 रिएक्शन थोड़ी बहुत लिख दिए ताकि आपका समय भी जो है वो बिगड़े नहीं, इसलिए. So first reaction is the reaction of glucose with hydrogen iodide in presence of red phosphorus. It is act as a reducing agent. बच्चों एक बात दिमाग में रखना, मैंने यहाँ पे आपको रिएक्शंस लिख के दे दी है. हमारी NCERT बुक में सिर्फ इसको वर्ड्स में लिखा है, थियोरी लिखी है, रिएक्शन नहीं दी गई उसमें. एक्चुअली वो मेथड सही है क्योंकि आप प्रूव कर रहे हो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और रिएक्शन में लिख भी रहे हो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ड्रॉ भी करते हो, तो वो कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? सो वी आर इनकरेक्ट नाउ. मगर समझने के लिए, थियरी को दिमाग में घुसाने के लिए हमने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया. अगर आप भी कर देते हो तो आप गलत नहीं हो, मगर टेक्स्ट बुक में से जब आप पढ़ोगे तो डायरेक्टली उसमें थियरी लिख के दे दी है, तो आपको वो थियरी समझने के लिए ये रिएक्शन देखना जरूरी है. इसलिए मैंने यहाँ पे रिएक्शन के बेस पे सब कुछ समझा दिया है, आपको वो थियरी पढ़नी होगी. ठीक है?
देखिए मैं वापस बोल रहा हूं, हम ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप स्ट्रक्चर प्रूव कर रहे हो और प्रूव करने से पहले कैसे ड्रॉ कर दिया भाई? अभी तो प्रूव ही नहीं किया, ठीक है। मगर समझाने के लिए मैंने यहां पे लिख दिया है, क्योंकि हमें पता है ग्लूकोज कौन सा है, क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप डायरेक्टली यहां पे सिर्फ लिख सकते हो ग्लूकोज, जस्ट ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मगर आपको समझने के लिए आप अपनी फेयर बुक में अगर लिखते हो तो ये लिखना जरूर, ठीक है। Okay, so first reaction, reduction of glucose with hydrogen iodide in presence of red phosphorus. So you can see the structure of glucose: CHO, CHOH 4 times, CH2OH. It is a glucose, CHOH 4 times directly लिख दिया मैंने. So due to the reduction of this carbonyl, CHO functional group reduced into CH3 by removing H2O. CHOH 4 times, 4 CHOH functional groups reduced into CH2 by removing of H2O. And this CH2OH functional group reduced into CH3 by removing H2O. So overall in this reaction, we can lose the H2O molecules from the glucose 1, 4 and 1. It means 6 H2O molecules will removed from this reaction. Okay, so we'll get the normal hexane. अभी आपको ग्लूकोज का पता नहीं है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कौन सा है, मगर आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या मिल रही है? नॉर्मल हेक्सेन. अभी नॉर्मल हेक्सेन आपके पास प्रोडक्ट आ गया तो आप बता सकते हो कि भाई रिडक्शन से हमारे पास नॉर्मल हेक्सेन आ गया, 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन मिल रही है, ठीक है. सो इफ वी गेट द स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन इन द रिडक्शन ऑफ दिस ग्लूकोज, फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ दिस ग्लूकोज, देन वी कैन से द 6 कार्बन चेन, स्ट्रेट चेन इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज. रेडी? तो ये नॉर्मल हेक्सेन मिला, उसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि चलो भाई कुछ मिले या ना मिले, ग्लूकोज में 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन तो है ही, क्योंकि हमें ग्लूकोज में से नॉर्मल हेक्सेन मिल गया रिडक्शन से. अभी नॉर्मल हेक्सेन मिला तो 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन यहां भी होगी. इसमें तो सिर्फ ऑक्सीजन ही निकाला है ना हमने रिडक्शन से, और तो कुछ नहीं किया. ऑक्सीजन निकाल दिया, हाइड्रोजन घुसा दिया, बाकी 6 के 6 कार्बन ऐसे के ऐसे ही है, ठीक है. सो ऑन द बेस ऑफ दिस रिएक्शन वी कैन से glucose has 6 carbons chain, straight chain, right? Okay, तो ये रिएक्शन से हमने ये प्रूव कर दिया 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है. नाउ हमें ये भी प्रूव करना है ग्लूकोज में एक CHO भी है, एल्डिहाइड है. मगर ये एल्डिहाइड को प्रूव करने से पहले हमें ये प्रूव करना होगा कि भाई उसमें कार्बोनिल है, बिकॉज एल्डिहाइड इज वन टाइप ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप. सबसे पहले हमें यह प्रूव करना है कि कार्बोनिल है या नहीं. इफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज, देन इन दैट टाइप ऑफ ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ कार्बोनिल आइदर एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट. मतलब आप कार्बोनिल प्रूव कर देते हो तो यह प्रूव हो जाएगा कि उसमें या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है. मगर अगर कार्बोनिल प्रूव होता है तो ही आपको एल्डिहाइड के बेस पे जाना होगा, एल्डिहाइड की कंफर्मेटरी टेस्ट करनी होगी. सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें कार्बोनिल है या नहीं. तो चैप्टर नंबर 12 में हमने ये भी रिएक्शन देखा था. ऑल द कार्बोनिल कंपाउंड्स शो द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. याद कीजिए वो reaction with NaHSO3 sodium bisulfite, reaction with hydrogen cyanide, reaction with Grignard reagent of carbonyl, reaction with alcohol, and we can get oxazone, reaction with ammonia and its derivatives, right? Reaction with hydrogen cyanide and you'll get the cyanohydrin compounds. तो चैप्टर नंबर 12 में देखा था, वही रिएक्शन हमें देखनी होगी, क्योंकि ग्लूकोज में अगर कार्बोनिल है तो वो रिएक्शन देना चाहिए ना. So let's discuss the proof of carbonyl. For carbonyl group, when we react this glucose with hydroxylamine NH2OH, hydroxylamine, then by the removal of H2O oxygen from the aldehyde carbonyl and hydrogen from the amine hydroxylamine, we can get this type of compound. It is known as glucosoxime. यहाँ से 2H एक O निकल गया in form of H2O, glucosoxime, क्योंकि ये oxime functional group है, oxime. So it will produce glucosoxime. If we further react with extra amount of hydroxylamine, तो यहां 4 में से 3 कार्बन बच जाएंगे और एक कार्बन से OH निकल जाएगा और यहां पे हो जाएगा NOH. ओसेजोन उसे बोलते हैं. डाइऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप यहां पे कनेक्ट हो जाने की वजह से उसे बोलते हैं ओसेजोन.
बच्चों ये एनसीईआरटी में नहीं दी गई हुई ये रिएक्शन, मगर इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछी गई है, जेडब्ल्यू में लास्ट ईयर भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख के दे दिया, यहाँ पे एक्स्ट्रा भी लिख दिया, ठीक है। इट इज ओसेजोन कंपाउंड व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिलेमाइन, लिसन केयरफुली, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिलेमाइन, देन इट विल गिव ओसेजोन, बट व्हेन ग्लूकोज ओनली रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमाइन, देन इट विल गिव ग्लूकोज ऑक्साइम, एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ऑक्साइम वी कैन से कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। अभी आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी ना चलेगा, अभी एक ही फंक्शनल ग्लूकोज ऑक्साइम बना के आप बोल रहे हो कि चलो कार्बोनिल है, दूसरी भी रिएक्शंस दे दो एक बार, क्योंकि कार्बोनिल तो बहुत सारी रिएक्शंस देता है, तो दूसरा भी ट्राई करते हैं। चलो, व्हेन वी रिएक्ट दिस ग्लूकोज विथ हाइड्रोजन साइनाइड, तो यहां पे मैंने ग्लूकोज थोड़ा खोल के लिख दिया, ठीक है, कार्बोनिल फॉर्म में लिख दिया। अभी कार्बन पे हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन साइनाइड में हाइड्रोजन पे हो गया पॉजिटिव एंड साइनाइड पे हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, तो माइनस प्लस एक्सचेंज हो जाएंगे। ऑक्सीजन माइनस डेल्टा के साथ हाइड्रोजन चला जाएगा, और कार्बोनिल जो कार्बन है वो प्लस डेल्टा था, उसके साथ साइनाइड कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। And CHOH 4 times CH2OH, it is known as glucosinohydrin because it is formed from the glucose. So this compound is sinohydrin compound. So we can say that glucose can react with hydroxylamine and form oxime compound. Glucose can react with hydrogen cyanide and form sinohydrin. So we can say that in the glucose, carbonyl functional group is present, but carbonyl compound means carbonyl functional group means either aldehyde or glucose, either aldehyde or ketone. So which functional group is present in form of carbonyl, aldehyde or ketone? So to prove the functional presence of functional group either aldehyde or ketone, we have to use the conformatory test of aldehyde. कई रिएक्शंस ऐसे भी है जो सिर्फ एल्डिहाइड ही दे सकता है, कीटोन नहीं दे सकता। कई रिएक्शंस ऐसे भी है जो कीटोन दे सकता है, एल्डिहाइड नहीं देता। सो लेट्स डिस्कस द स्पेसिफिक कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, क्योंकि कार्बोनिल है, अभी हमें यह प्रूव करना है कि उसमें एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड की कंफर्मेटरी टेस्ट देखनी होगी। तो वापिस याद कर लो चैप्टर नंबर 12, उसमें स्पेशली एल्डिहाइड के लिए कुछ रिएक्शंस थे, जैसे कि टोलेंस रिएजेंट, रिएक्शन विथ सिल्वर मिरर, रिएक्शन विथ एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, it gives silver mirror test, right? So if glucose can react with the Tollens reagent and produce the silver mirror on the inner surface of reaction vessel, then we can say it gives the positive Tollens reaction. It means it can react with Tollens reagent. So we can say if glucose react with Tollens reagent, then aldehyde functional group is present. Also, if glucose react with Fehling reagent, then it will produce the reddish precipitate, red bloodish precipitate of Cu2O. वो भी हमने देख लिया था, Fehling reagent, copper sulfate and sodium potassium tartrate. Sodium potassium tartrate is Fehling B and Fehling A is copper sulfate. तो देखिए यहाँ पे हम ग्लूकोज को टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो वो देगा हमें कार्बोक्सिलेट आयन एंड सिल्वर मिरर on the inner surface of reaction vessel or test tube. So we can say it gives the positive Tollens test. Glucose can react with Tollens reagent. It forms the silver mirror. So we can say as a carbonyl functional group, aldehyde is present in glucose. But let's see the another example. When this glucose react with Fehling reagent, copper sulfate and sodium potassium tartrate, then it will produce the red bloodish precipitate of Cu2O. So it is also the confirmatory test of aldehyde. ये दोनों के दोनों हमने रिएक्शन वहां पे देखा था, ये भी बना देगा सिल्वर मिरर टेस्ट की तरह कार्बोक्सिलेट आयन, मगर यहाँ पे कॉपर सल्फेट में रहे जो Cu+2 था वो Cu+1 में कन्वर्ट हो गया, Cu2O जो रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है वो रेड हो जाएगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि एल्डिहाइड है, फेलिंग दे रहा है। चलो ये दोनों रिएक्शंस पे तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि एल्डिहाइड है, मगर हमारी एनसीईआरटी में ये रिएक्शंस के बारे में नहीं बताया, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये दोनों एक्स्ट्रा है। मगर ये तीसरी रिएक्शन देखते हैं, इफ वी यूज ब्रोमीन वाटर। एक्चुअली बच्चों ब्रोमीन वाटर इज वन टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which can oxidize aldehyde to carboxylic acid, but it is a weak oxidizing agent. It cannot oxidize primary alcohol to direct carboxylic acid. वो CH2OH प्राइमरी अल्कोहल को सीधा COOH में कन्वर्ट नहीं कर सकता भाई,
वो तो सिर्फ आल्डिहाइड को ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। तो चलो एक काम करते हैं, ये जो ग्लूकोज है उसको Br2 वाटर के साथ ऑक्सीडाइज कर देते हैं। अगर उसका जो आल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होगा तो वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसमें प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो COOH में नहीं कन्वर्ट होगा, क्योंकि Br2 वाटर है, वो तो नहीं कर सकता प्राइमरी अल्कोहल को COOH में ऑक्सीडाइज। और Br2 वाटर ब्रोमीन वाटर कीटोन को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता यार। तो फिर चलिए वो रिएक्शन देखते हैं। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद Br2 वाटर, then Br2 water act as a oxidizing agent and it will oxidize this CHO into COOH functional group. You can see. So now COOH, CHOH 4 times, CH2OH, it is known as gluconic acid. So glucose oxidize into gluconic acid by using Br2 water. It proves that aldehyde functional group is present. So यहां तक हमने जितनी भी रिएक्शन देख ली ना, उसके बेस पे हमने ये तो प्रूव कर दिया कि चलो भैया 6 कार्बन तो प्रेजेंट है ग्लूकोज में, और पहला वाला है वो CHO हो गया हमारा। अभी बाकी के 5 कार्बन में क्या है वो जुगाड़ बिठाना है, क्योंकि हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6 है। हमारे पास C6 तो आ गया, H सिर्फ एक ही आ गया और ऑक्सीजन भी एक ही आया है। अभी हमें 5 ऑक्सीजन का जुगाड़ बिठाना है। तो अभी 5 ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में है? अल्कोहल है तो कौन से है, प्राइमरी सेकेंडरी कहाँ पे कौन सा है, वो भी हमें देखना होगा। ठीक है, so let's discuss the presence of alcohol. How many alcohols are primary and secondary? Ready? On the basis of different organic reaction. अभी हम आगे देखते हैं, दूसरा प्रूफ लेते हैं। चलो बच्चों, अभी हमने क्या प्रूव किया कि भाई ग्लूकोज में एक आल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है, जिसमें से पहला वाला कार्बन CHO हो गया हमारा। वो लास्ट रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज करके देख लिया, ग्लूकोनिक एसिड मिल गया। अभी हमने देखना है कि उसमें बाकी के जो 5 ऑक्सीजन है वो OH फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में है। तो कैसे देखेंगे? तो हम करेंगे एसाइलेशन रिएक्शन। अगर हम एसाइलेशन करते हैं और एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट हो जाता है तो हो जाएगा हमारा पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। अगर OH फंक्शनल ग्रुप है तो वो एसाइलेशन रिएक्शन जरूर देगा। चलो देखते हैं। ठीक है, सो व्हेन वी रिएक्ट द ग्लूकोज विथ acetyl chloride CH3COCl, ethanoyl chloride, which is also known as ethanoyl chloride, or acetic anhydride or ethanoic anhydride. So during the process, ethanoyl chloride or acetic anhydride will use in form of 5 moles per 1 mole glucose. This reagents will use as a in form of as a 5 mole. 5 mole यहाँ पे रिएक्ट होने वाले हैं ये ग्लूकोज के साथ। तो यहाँ से एक Cl और यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन्स है अल्कोहल फॉर्म में वो सब सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा बाय प्रोडक्ट HCl 5 मोल, और यहाँ पे 5 मोल मिलेंगे हमें CH3COOH एज ए बाय प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ से अगर CH3CO एक निकल जाता है एज एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप, तो बाकी बचने वाला है दूसरा CH3CONO। देखते हैं कैसे मिलता है, मगर हमारा प्रोडक्ट हमें ऐसा मिलेगा CHO हाइड्रोजन निकल गया, बाकी बचा COCH3, ये हो जाएगा 4 टाइम C डबल बोन OCH3। कितने एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट हो गए? 5। तो ये हो जाएगा हमारा पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। अब इसमें से एक COCH3 कनेक्ट हो गया 5 टाइम है, तो अभी दूसरा COCH3 बच जाएगा, तो एक बच जाएगा COCH3 और एक O भी बच जाएगा, उसके साथ आ जाएगा H, यहाँ से हमने हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिया। So 5 mole acetic acid will produce as a byproduct if we use acetic anhydride or ethanoic anhydride for acylation process. Ready? So this is the acylation process of glucose. So during acylation we can produce the penta-acetyl glucose, which prove that 5 OH functional groups are present. 5 OH functional groups are present. So it proves 5 OH functional groups are present. मगर
या पांचों के पांचों OH सेकेंडरी है प्राइमरी है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए भी हम देखते हैं कि सेकेंडरी है या प्राइमरी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमारे पास एक है एल्डिहाइड मतलब ग्लूकोज, अब ये जो चारों के चारों है ये हो जाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल, ये हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। और एक दूसरा वाला मैं जो रिएजेंट यहां पे ले रहा हूं वो हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड, क्योंकि ग्लूकोनिक एसिड कैसे हमें मिला था? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। वो भी कैसे ऑक्सीडाइज किया था हमने? बाय यूजिंग Br2 वाटर। इट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कैन ओनली ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, विच कैन नॉट ऑक्सीडाइज अल्कोहल, विच कैन नॉट ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने देखा था, अभी क्या करते हैं हम इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका पावर इतना ज्यादा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए कि वो एल्डिहाइड को भी COOH में कन्वर्ट कर सकता है और प्राइमरी अल्कोहल को भी COOH में कन्वर्ट कर सकता है। वापिस बोल रहा हूं, विच कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड आल्सो इट कैन ऑक्सीडाइज primary alcohol into carboxylic acid, but cannot oxidize secondary alcohol. So when concentrated nitric acid react with glucose, so which will produce COOH, CHOH 4 time and COOH, ये हो गया सैकेरिक एसिड। सो ग्लूकोनिक एसिड को अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये तो हमारा COOH ही है, मगर ये प्राइमरी अल्कोहल है, वो कंफर्म हो गया क्योंकि वो हो गया COOH। अब ये एल्डिहाइड तो नहीं था, अगर वो एल्डिहाइड होता तो ये भी पहले से ही सैकेरिक एसिड हो जाता वो Br2 वाटर के साथ। सोच लो एक बार, जब हमने ग्लूकोज, अगर यहां पे एल्डिहाइड होता, ग्लूकोज में ये दोनों साइड एल्डिहाइड होता, तो ये दोनों के दोनों हो जाते सैकेरिक एसिड पहले ही ब्रोमीन वाटर के साथ। मगर ब्रोमीन वाटर के साथ एल्डिहाइड है, वो तो सिर्फ COOH में यहां पे कन्वर्ट हुआ, यहां तो COOH मिला ही नहीं था। कहां पे? जब हमने Br2 वाटर के साथ रिएक्ट किया था। ठीक है, सो when gluconic acid react with concentrated HNO3 strong oxidizing agent, then it will convert into saccharic acid. It proves that in gluconic acid last carbon is primary alcohol. Similarly, we oxidize the glucose, it is also oxidized into saccharic acid, so it is also proved that first carbon is aldehyde, because ये aldehyde है, ये तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया था। ठीक है, ब्रोमीन वाटर यूज करके। मगर ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया, वो तो अभी प्रूव हुआ क्योंकि ब्रोमीन वाटर इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया था, मगर HNO3 ने कर दिया, तो ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। तो चलो अभी ये कंफर्म हो गया कि पहला कार्बन है वो हमारा एल्डिहाइड है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तो ठीक है, छठा कार्बन भी हो गया अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। अभी 5 OH फंक्शनल ग्रुप में से एक OH यहां पे जुड़ गया लास्ट वाले कार्बन पे। अभी बाकी बचे 4 OH फंक्शनल ग्रुप के, यहां पे हमने प्रूव कर दिया 5 OH फंक्शनल ग्रुप है। तो अभी बाकी बचे 4 कहां मिक्स करोगे? तो कोई बोलेगा कि सर एक कार्बन के साथ 2 लगा दो OH। मगर बच्चों याद करो, मैंने पहले भी बोला था कि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस 2 OH फंक्शनल ग्रुप कैन नॉट स्टेबिलाइज ऑन अ सिंगल कार्बन। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं रह सकते, तो आप एक कार्बन के साथ 2 OH को जोड़ ही नहीं सकते। तो यहां पे 4 कार्बन बचे हैं, चारों के साथ एक OH दे दो तो वो तो स्टेबिलाइज हो जाएगा। अभी रिमेनिंग वैलेंसी जो कार्बन की बचेगी उस पे एक हाइड्रोजन जोड़ दो, तो अभी हाइड्रोजन भी हो गए। देखिए, क्योंकि जो वैलेंसी जितनी बाकी होगी उतने हाइड्रोजन के साथ ही कनेक्ट हुआ होगा। तो ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो प्रूव हो गया। ठीक है,
So by using this chemical reactions we can prove the structure of acyclic structure of glucose. तो आज हमने ये acyclic structure प्रूव कर दिया बच्चों। ये थियोरी पोर्शन में थ्योरी के बेस पे आपको लिख दिया गया हुआ है एनसीईआरटी में, मगर मैंने आज यहाँ पे रिएक्शन लिख के आपको समझाया ताकि आप इजीली समझ भी सको, और अब जब थियोरी पढ़ोगे तो आपके दिमाग में भी कुछ घुसेगा। ठीक है, तो चलो अभी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कैसे पता चला कि ग्लूकोज का ट्राइसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, कैसे पता चला, कैसे उसका जो स्ट्रक्चर है डेवलप कर सकते हैं, कौन से साइंटिस्ट ने उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, वो सभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए आगे लूँगा। गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।